Okay, now let's start with this exercise 6.3. So after discussing all the theorems that we are going to use in this exercise 6.3, so let's start with the question number 1. So look at this question number 1 here. In this figure is also given 6.39. Side QP and RQ. Let me read the question first. QP, RQ of a triangle are produced to S and T respectively. तो साइड P को इसको बढ़ा दिया है, थोड़ा सा S तक कर दिया है और यहाँ पे Q को बढ़ा के T तक ले गए हैं, राइट. SPR गिवन 135, ओके. PQT गिवन 110, ओके. फाइंड करना है PRQ. कहाँ पे है ये PRQ? PRQ इज दिस एंगल. सपोज आई लेट दिस PRQ एज X. इसको मैंने X सेलेक्ट कर लिया. And this angle we need to find, right? So now the first thing in this question is, अगर मैं ये बोलूं आपसे 135 डिग्री प्लस एंगल QPR. QPR यहाँ पे है, this is QPR, it is here, right? If I say that is equal to 180 degree, so why it is 180 degree? This 135 plus this QPR is 180. What is the reason? The straight line? Yes, it's a straight line. Or we can say that it's also a linear pair. Yes, we can say that linear pair. So that's why it's 180. तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं QPR फाइंड करना चाहूँ, is equal to 180 minus 135 shift on this side minus 135 is equal to 45 degree. So मैंने एंगल फाइंड कर लिया QPR, right? Similarly in this case now अगर मैं एंगल 110 को एंगल ले लूं 110 प्लस दिस एंगल RQP is equal to 180 degree. Why? What is the reason? This 110 plus this. Anyone? So अगर मैंने 110 Sir, because yes, sir, because it is forming the linear pair. yes, absolutely right. तो 1110 को और इस एंगल को अगर मैंने सम करके 180 लिख लिया है, तो व्हाट इज द रीजन? वी नीड टू राइट द रीजन आल्सो. यस, इट्स लीनियर पेयर, राइट? सो फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड RQP. RQP is equal to 180 minus 110 is equal to 70 degree. So why I found these two angles? So मैंने दो एंगल फाइंड किए. देखिए ये एंगल आया है 45 डिग्री, ये एंगल आया है 70 डिग्री और ये एंगल मैंने X एज्यूम किया हुआ है. तो मैंने दोनों एंगल क्यों फाइंड किया, अब आपको समझ में आ गया होगा. क्योंकि मैं इन ट्रायंगल PQR this X plus 45 plus 70 is equal to 180 degree. What is the reason here? Because of angle sum property of a triangle. Yes, absolutely right. Angle sum property. It's angle sum property. जो हमने डिस्कस किया था. This is the topic that we have discussed to solve the question for this exercise. So now we can easily find out the value of X from here. So it's X plus 70 plus 45. It comes out to be 115 is equal to 180. Shift this 115 on this side, तो इस साइड में आके minus 115 हो जाएगा. And then it's become 65 degrees the answer in this case. I hope this question is clear to you. ऊपर करिए. Okay. I hope this question is clear to you. So the value Yes, sir. of X is 65. Can you please explain it again? Okay, let me explain it again. So we can proceed this question with different approach also. हम लोग इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट अप्रोच से भी कर सकते थे.
लेट मी टेल यू द डिफरेंट वे ऑफ दिस नाउ। तो हमने ये 45 फाइंड कर लिया था यहाँ पे, ठीक है, 45 हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था। एंड इफ दिस एंगल इज एक्स, अगर ये एक्स एंगल है, तो हमने एक थ्योरम अभी पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। उसमें क्या होता था, जो x प्लस 45, जो दोनों इंटीरियर एंगल का सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एक्सटीरियर एंगल के। एक्सटीरियर एंगल इज 110। सो आफ्टर दिस इस 45 इस स्टेप के बाद यू कैन राइट दिस स्टेप, and this x is equal to 110 minus 45. So the value of x is equal to 65 in this case. So you can proceed with any method. आप किसी भी वे से कर सकते हैं. Like this you can also solve it. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Yes, sir. Okay, look at this question number 2. Figure is also given. Figure given होती है तो question easy हो जाता है हमारे लिए. पहले से फिगर बना के देते हैं. x दे रखा है 62, xyz 54, तो ये 62 हो गया, xyz 54 हो गया। ओके, जो आर द बाइसेक्टर ऑफ xyz एंड xzy, तो ये बाइसेक्टर्स हैं। यो एंड दिस जो आर द बाइसेक्टर्स। तो बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, बाइसेक्टर, बाई मींस टू, सेक्टर मींस पार्ट। इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इन एंगल्स को, ठीक है। तो इसको अगर मैं बाइसेक्टर बोल रहा हूं तो ये, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। इट डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट। एंड इफ दिस एंगल इज y, सो देन दिस एंगल इज आल्सो y। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द बाइसेक्टर रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल xyz। अब हमें फाइंड करना है OZY। OZY कहां पे है, ये है OZY। एंड YOZ ये है, और YOZY। ओके, सो लेट मी राइट इट। OZY को मैंने लेट कर लिया है। OZY अगर आप देखेंगे तो OZY इज दिस एंगल, ये वाला एंगल। तो ये मैंने x लेट कर लिया है। ओके, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक एंगल हमें फाइंड करना है YOZ कहां पे है, ये वाला एंगल। इसको मैं मान लेता हूं छोटा z, ठीक है। इसको मैंने मान लिया स्मॉल z, और इसको मुझे फाइंड करना है। तो हम एंगल्स भी लेके कर सकते हैं, XYZ ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है, लिखने में आसानी होती है। नाउ अब आप देखिए इन ट्रायंगल XYZ ट्रायंगल में अगर मैं 62 डिग्री लिखूं, 54 डिग्री लिखूं, और ये एंगल लिखूं, एंगल XZY कंप्लीट एंगल is equal to 180 degree. What is the reason for this? Angle sum property. Yes, it's angle sum property. ये ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का मैंने सम ले लिया है, तो इट्स एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब देखिए यहां से फाइंड करते हैं XZY is equal to 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इट्स बिकम 6 + 5 11, 116। इधर आके माइनस हो जाएगा 116, right? So in this case the answer is, it comes out to be angle XZY, it become 4 7 - 1 64। तो एंगल 64 आ गया है, ठीक है। अब आप देखिए ये XZY किसके इक्वल है, XZY, if you look at this angle XZY, ये कंप्लीट एंगल है, दिस कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल है, x + x 2x। तो XZY is equal to 2x is equal to 64। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 डिग्री। आई बात समझ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 32। तो हमारा एक पार्ट तो हो गया, ये आ गया 32 डिग्री, इट्स इक्वल टू 32। Sir, Yes. sir, how 2x come? Okay. Let me explain this. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लेट मी इस फिगर को मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, इधर जूम कर देता हूँ। ये जेड पे जो एंगल बन रहा है इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो मैंने जूम करके यहाँ पे बना लिया इसको, ठीक है। वही एंगल मैंने बनाया केवल। तो ये एंगल था एक्स, जेड और वाई, ठीक है। दिस इज द एंगल XZY, दिस वन, राइट। अब इस एंगल को क्या किया, इस एंगल को एक लाइन जो ZO, एक लाइन जो थी
वो इस एंगल को इक्वली डिवाइड करके गई थी यहां से, ठीक है, ये पॉइंट ओ था। तो मैंने कंप्लीट फिगर नहीं लिया। अब ये एंगल एक्स है और ये एंगल एक्स है, तो ये कंप्लीट कितना होगा, एक्स प्लस एक्स 2x and it's equal to xz y. I hope it is clear to you now. Okay, sir. So this Yes, complete sir. angle is divided into the two part and एक part को मैंने x ले लिया तो ये 2x हो जाएगा, right? So this is the value of x. अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। और ठीक इसी तरह से आप यहाँ पे मुझे बताइए इसमें नाउ ये y प्लस वाई 2y कितना आएगा, 2y इज इक्वल टू 54. क्योंकि उन दोनों का सम 54 है एंड y इज इक्वल टू 2 टू द 4 इट्स 27। अब हमारे पास x भी है, आज हमारे पास y भी है, आज हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास z नहीं है। तो z को कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड दिस z? Sir, by using angle sum property in this triangle. Which triangle? In this small triangle. This triangle joy. ट्रायंगल जोय में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। ना पुट द वैल्यू, x हमारे पास है आज, y भी हमारे पास है, z हमारे पास नहीं है, तो z को हम लोग फाइंड कर लेंगे अभी। It's 180, right? I hope this thing is clear to you. This is Yes, why, sir. this is because of angle sum property. Yes. So you have to write the reasons also. So the value of z in this case is 180 minus 32 plus 27 is 59. So the z is 1, 7 minus 5 is 2, it's 121. So what is the required value? The z हमें चाहिए था, the value of z is 121 degree. So this is the final answer. I hope this question is clear to you. Anyone, could you please match the answer in your book? इसका आंसर मैच कीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन 2, You can please throw down. हाँ Sir, exercise 6.3 sir, this question का आंसर है सर 32 डिग्री एंड 121 डिग्री। ओके, इट्स राइट। और इसका फर्स्ट का देखना बेटा, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, 65। यस सर 65 डिग्री। Yes, sir. Okay. So I hope this question is clear to you. सर 65। Okay. Yes, sir. Now let's move to the Can you question. please scroll? What? Can you please scroll down? जोर से बोलो। सर आप प्लीज स्क्रीन थोड़ी नीचे कर सकते हैं। अच्छा, ओके। यस सर, अंडरस्टैंड। Okay, yes is asking this thing. सर हो गया। Okay. वंस ये जो अभी मैंने बोला कि जोर से बोलो, इसमें वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई व्हेन आई वाज इन क्लास में, मैं क्लास ले रहा था, एक बच्चा बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, मैंने उसको बोला जैसे कि जोर से बोलो, पता नहीं कौन बच्चा था, उसने पीछे से बोला जय माता दी, मैंने बोला जोर से बोलो, उसने बोला जय माता दी, तो मुझे वो बात याद आ गई। नाउ आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सर आपको Yes, sir. वो बच्चा Okay, now look at this question 3. In this question 3, in figure 6.41, AB is parallel to D, angle back 35 degree, angle CD 53 degree, find angle DCE. फिर DC है कहाँ पे, इसको ढूंढते हैं पहले। DC यहाँ पे है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। और एंगल बैक 35 यहाँ पे है और एंगल CDE 53 यहाँ पे है। तो अब ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज दिस एंगल, एनीवन कुड यू प्लीज टेल मी।
Sir, 35 degree. Very good. Why? Because Alternate interior angle. yes, it's equal to 35. Alternate interior angles. So lines are parallel given. So हम लोग alternate interior angles लेंगे. Who is giving this answer? Sir, Prerna Kasana. Okay, Prerna, very good. It is interior angles, right? Alternate interior angle. If AB is parallel to DE, तो ये 35 आएगा. Now अगर आप ये ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल CDE, इसमें अगर मैं 53 का और इस 35 का, ये एंगल 35 आ गया. दिस एंगल इज 35. और जो एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल हमें फाइंड करना है DCE का. इनका सम करूं तो मैं सम 180 डिग्री लिख सकता हूं. Why? Because Angle sum property. yes, it's angle. अब देखिए एंगल DCE is equal to 180 minus 53 plus 35, it's 88. So angle DCE comes out to be 92. So this is the final answer in this case. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 4 here. Figure is given. Okay. If line PQRS intersect at point T. Okay. ये point T पे intersect कर रही है. Such that PRT 40, RPT 95, TSQ 75, SQT हमें find करना है. तो हमें एंगल स्कूटी फाइंड करना है. स्कूटी कहाँ पे है? SQT. SQT is here, right? अगर किसी तरह से इस एंगल का पता कर लें तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे हम लोग. दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट? अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इस वाले ट्रायंगल में. पहले ये देखिए ऊपर जो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल लाइंस पैरेलल नहीं गिवन है, तो हमें ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी. ट्रायंगल PRT देखिए, देख पा रहे हैं ट्रायंगल. अगर ये ट्रायंगल देखेंगे आप, ट्रायंगल P, इट इज हियर. ओके. सो पहले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पटर में देखिए आप, ट्रायंगल पटर PTR में, इस पटर ट्रायंगल में 95 प्लस 40 प्लस, और ये जो एंगल है, इस एंगल को x ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? x, तो x का सम कितना आएगा? 180 डिग्री. 180 degree. रीजन सेम है, एंगल सम प्रॉपर्टी. रीजन भी आपको जरूर लिखना चाहिए. 180 में से माइनस किया 95 प्लस 40, 135. सो इट कम्स आउट टू बी 45 डिग्री. तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है, ठीक है? अब अगर मैं बोलूं यहां पे, ये जो एंगल है, एंगल STQ भी x के इक्वल है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? Sir, vertically opposite angle. यस, एब्सोल्युटली राइट. अगर ये एंगल x है तो ये भी x है. वर्टिकल अपोजिट. अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकल अपोजिट. यस, एब्सोल्युटली राइट. सो राइट द रीजन, वर्टिकल अपोजिट एंगल. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बट एग्जाम यू नीड टू राइट द फुल फॉर्म. V वर्टिकल, O अपोजिट एंगल्स. तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बट दिस इज नॉट द शॉर्ट फॉर्म. ये कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मैंने खुद बनाई हुई है. तो एग्जाम पेपर में इसको नहीं कोई सुनेगा आप लोगों की बात की ये शॉर्ट फॉर्म है, तो वहां पे आपको पूरी फॉर्म में ही लिखना चाहिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है? तो STQ कितना आ जाएगा? 45, राइट? अब हम लोग नीचे वाले ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल स्कूटी को. इस ट्रायंगल स्कूटी को देखिए, इन ट्रायंगल स्कूटी. ओके, स्कूटी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं. तो ये एंगल कितना आ गया? ये एंगल x कितना आ गया? 45 प्लस 75. सो इट्स 45 प्लस 75. और जो हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल स्कूटी हमें फाइंड करना है, इनका सम आएगा 180 डिग्री, ठीक है? एंगल सम प्रॉपर्टी. आपको फुल फॉर्म लिखनी है, ये यूज मत करना. मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बार बार हम लोग लिख रहे हैं इसको, तो आप समझ गए हैं क्या लिखना है. सो नाउ फाइंड स्कूटी. एंगल स्कूटी आपको फाइंड करना है. स्कूटी आएगा 180
minus 45 plus 75 become 120. सो एंगल स्कूटी आ गया हमारे पास, तो स्कूटी हो गया इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो दिस इज द फाइनल आंसर इन दिस केस. एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से बता देता हूं हमने किया क्या इस क्वेश्चन में. लेट मी टेल यू अगेन. सबसे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस एंगल का पता किया. ठीक है, 95, 40 और 180 का सम लिया इस एंगल को लेके, तो ये एंगल हमें पता लगा, ये एंगल आया 45 डिग्री. ठीक है, ये एंगल कटर पीटीआर. अब ये एंगल अगर 45 आया तो ये एंगल भी 45 डिग्री आएगा. क्यों? क्योंकि अभी बताया इन्होंने वर्टिकल अपोजिट. अब हमने इस पे स्कूटी ट्रायंगल में, एसक्यूटी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी. अगर हमें दो एंगल पता है तो थर्ड वाला तो हम लोग फाइंड कर ही लेते हैं. 180 डिग्री का इक्वल लिया तो हमें ये एंगल पता लग गया जो हमें एंगल फाइंड करना था. ठीक है, ये छोटी सी कहानी है, आपको समझ में आ गई होगी. लिखना इसको इस तरह से है, प्रॉपर, दिस इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन in the exam paper. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next Yes, question. sir. Look at this question number 5 here. Figure is given 6.43. PQ perpendicular है. PQ is perpendicular to, okay, 6 questions are there. Complete हो जाएगा, अभी हमारे पास 10 minutes हैं. We will complete this exercise today. In figure 6.4, so look at this question 5. Figure is given, okay. PQ परपेंडिकुलर है PS के एंड PQ पैरेलल है SR. तो कहां पे है PQ? PQ ये है, इनको देख के चलते हैं फिगर में साइड बाय साइड. PQ किसके परपेंडिकुलर है? PS के. सो व्हाट डज इट मीन? इसका परपेंडिकुलर का मतलब है ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. राइट. अब PQ SR के पैरेलल है. कहां है SR? SR इज हियर. SR के पैरेलल कौन है? PQ. SQR 28, ओके, ये 28 दे रखा है. QRT 65, ये 65 दे रखा है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यूज. ठीक है, फिगर क्लियर कर देता हूं. तो ये आ रहा है जी 90. ओके. अब आपने यहां पे सबसे पहली प्रॉपर्टी में लगाता हूं, अगर PQ SR के पैरेलल है, इफ PQ इज पैरेलल टू SR, तो मैं ये बोल सकता हूं x प्लस 28 इज इक्वल टू आएगा 65 के. व्हाट इज द रीजन? कुड यू प्लीज टेल मी द रीजन फॉर दिस? Sir, alternate interior angles. Yes, absolutely right. It's alternate interior angle. ये देखो इन दोनों का सम, ये एंगल और ये एंगल, these are the alternate interior angles. तो रीजन इज alternate interior angles. Don't use this short form. ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है, ऑथराइजेशन नहीं है इनका. इलीगल यूज ना करें आप, इनको मैं यूज कर सकता हूं. इट इज कॉपीराइटेड डाटा, राइट? सो डोंट यूज इट इन द एग्जाम पेपर. 65 में से 28 को माइनस कीजिए. इट्स 65 minus 28, 5, 7 and 5 minus 2, 3. So what is the value of x? x की वैल्यू कितनी आ गई? 37. तो आपको समझ में आया होगा. बस मैंने एक पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, राइट? अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल PQS. तो इस ट्रायंगल PQS में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना चाहूं तो x प्लस वाई प्लस 90 कितना आएगा? 180 degree. Yes, 180. Angle sum property. So I am writing the short form, but you are not allowed to use this short form because this short form is mine. And इनको किसी ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है. x प्लस वाई, x हमने निकाल लिया है तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं. 37 डिग्री प्लस y की वैल्यू फाइंड करनी है 90 इज इक्वल टू 180. तो यहां से हमें y मिल जाएगा 180 माइनस 37 प्लस 90, 127. तो ये आएगा मेरे पास 127, 353.
So the value of y is 53 and the value of x is 37 in this case. I hope this question is clear to you. So let me explain this question once again. So क्या किया है मैंने इस क्वेश्चन में बेसिकली, तो ये देखिए अगर इन दोनों का सम है x प्लस 28 का 65 के इक्वल होगा तो यहां से हमें x ऑब्टेंड हो गया, ठीक है। फर्स्ट थिंग x आ गया 37, तो x 37 आ गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब हमें x भी पता है इस ट्रायंगल में, 90 भी पता है। अगर ट्रायंगल में दो एंगल पता है आपको तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से y की वैल्यू 53 आ गई। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सर तो फिर बस दो प्रॉपर्टी से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। Yes, we have applied the two properties here in this question. ओके सर। And you can do this question in a different way also. आप एक different approach से भी इस question को कर सकते थे। Let me tell you that approach. अगर ये x है तो ये एंगल भी x होगा, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, राइट। अब हमने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, x का और 28 का सम, इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल आएगा, एक्सटीरियर एंगल के। तो हम लोग x को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। तो आप x की वैल्यू ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, इट्स कम्स आउट टू बी 37, ठीक है। x अगर 37 आ गया आपका, सो लाइक दिस एंड देन अप्लाई द, फिर ये PQS, तो आप इसी तरह से y फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ। एनीवन कुड यू प्लीज मैच द आंसर फॉर दिस? यस सर। इसका आंसर मैच करिए अपनी बुक में। सर इट इज करेक्ट। इसका आंसर मैच कीजिए पीछे वाले क्वेश्चन का। स्कूटी जो फाइंड करना था हमें, स्कूटी स्कूटी 60 आ सर रहा है। 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। नहीं ये तो सही है, इसका आया है ना, तो स्कूटी वाले का, इसका क्वेश्चन 4 का आंसर, क्वेश्चन 4 60 डिग्री। okay, right. So now look at this question number 6 here, the last question of this exercise. In figure 6.14 figure is given, the side QR of a triangle is produced to a point S. एक ट्रायंगल है PQR, इसकी ये ट्रायंगल PQR था, इसको मैं डार्क कर रहा हूं यहाँ पे रेड से। लेट मी इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ओके, सो इस साइड को ना, इस ट्रायंगल की PQR साइड को थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया, RS तक, यहां तक प्रोड्यूस कर दिया इन्होंने। पहली लाइन में ये बात इन्होंने हमें बताई। सो ये ट्रायंगल था PQR, इसको अगर रेड करता हूं तो दिखने में समझ में आएगा, इसकी साइड को प्रोड्यूस कर दिया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRS मीट एट T, बाइसेक्टर इक्वल डिवाइड कर दिया, इक्वल डिवाइड कर दिया, तो PQR का बाइसेक्टर है ये QT, ये x होगा तो ये भी कितना होगा x, ठीक है। अब ये इसका बाइसेक्टर है PRS का RT, ये अगर y होगा तो ये कितना होगा, ये एंगल भी y, बाइसेक्टर मतलब इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल QTR इक्वल टू QPR। सो दिस थिंग वी नीड टू प्रूव। कहां है QTR, इसको ढूंढते हैं। QTR कहां है, QTR ये है और QPR ये है, इन दोनों का रिलेशन निकालना है, और ये QTR और QPR के हाफ के इक्वल होना चाहिए। सो नाउ इसको प्रूफ करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है QTR इज इक्वल टू QPR। ओके, अब इसमें मैं लेट कर लिया मैंने इसको, एंगल जो QPT था और एंगल RQT था, दोनों बाइसेक्टर थे, इसको मैंने x लेट कर लिया है, ठीक है। दोनों को x ले लिया है क्योंकि बाइसेक्टर है, गिवन है, और एंगल SRT को और एंगल PRT को मैंने एंगल y सपोज कर लिया है। तो इनको मुझे बार बार लिखने में, XY लिखने में इजी होता है, तो मैं इसको सपोज कर सकता हूं, ऐसे लेट करके भी कर सकते हैं आप, या SRT और PRT इनको भी यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, राइट। नाउ अब आप अगर आप देखेंगे यहां पे, अगर एंगल x प्लस x 2x है और एंगल QPR, इनका जो सम आएगा दोनों का, ये सम आएगा 2y के,
2y के इक्वल. This is by theorem exterior angle property. ये क्यों आएगा, इसको मैं आपको अलग से समझाना चाहूंगा. ये कैसे आया, देखो मैं इस फिगर को थोड़ा ब्रेक करके बनाता हूं. इस फिगर को मैं उतना ही बनाता हूं जितना हमने यूज किया है. ठीक है, ये फिगर यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे. इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में. ठीक है, अब आप ये देखिए ये एंगल कितना है, ये एंगल यहाँ पे P लिख देता हूं, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे S है. तो what is this angle? This angle PRS. Anyone? Could you please tell me what is this angle PRS? If you look at the figure. Sir, angle P plus angle Q. Yes. What is angle PRS? ये एंगल को क्या लिखूं मैं? In the form of Y. PRS Y की फॉर्म में किसके इक्वल होगा? Sir, by the sum of angle P and angle Q. No, don't look at the sum. Look at this written here. This and this. I am asking about this angle. This angle is equal to this total angle is equal to anyone in this class? Sir. हाँ, बता सकते हैं? समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं? सर, वो अलग अलग हुआ है अलग अलग चीजों के पास. हाँ, यस, ये y यहाँ पे है, ये दिस एंगल इज y एंड दिस एंगल इज ऑल्सो y. सो व्हाट इज दिस कंप्लीट एंगल? एनीवन? सर, क्या ये P और T के इक्वल है? मैं ही बताता हूँ. If it is y and it is y, what is this PRS? It is 2y. Y plus y is 2y. Like this, what is this angle PQR? What is this angle PQR? X plus x, it is equal to 2x. So अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं. अगर ये एंगल लें और 2x का सम लें, इंटीरियर एंगल दिस एंड दिस इज इक्वल टू 2y. So this is the thing I have written here. Exterior angle property. Right? So from here we can find out the QPR. It is 2y minus 2x. Take 2 common from here. 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा y by x. तो अगर इस 2 को आप नीचे भेज दें तो इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ QPR is equal to y minus x. Right? Suppose this is equation 1. Now look at the figure again and look at this triangle. In triangle it is triangle TQR. अगर मैं बात करूं ट्रायंगल TQR की, इन ट्रायंगल TQR, अगर TQR में हम लोग देखें तो एंगल जो है एंगल QTR प्लस एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y के इक्वल आएगा. अगेन दिस इज द एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी. So let me tell you, let me draw this figure separately so you can understand it. So अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं जो ट्रायंगल TQR है, so this is the triangle TQR. Let me draw that triangle here. Let me draw it here. So this is the triangle TQR. ये ट्रायंगल TQR है. So this is point T. This is Q and this is R, right? And this is S. अब आप देखो ये TQR में ये तो हो गया QTR, ये एंगल जो मैंने लिया है. What is this angle TQR? अगर आप TQR देखेंगे फिगर में, what is this angle TQR? TQR देखो यहाँ पे आ रहा है, this is TQR. So this angle is X. And what is this angle? This angle TRS. TRS एंगल क्या होगा? इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देता हूँ तो आपको देखने में आसानी रहेगी. This is angle TRS. If it is Y, this is Y. This angle is TRS. What is this?
दिस इज इक्वल टू y, राइट? तो एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी y किसका सम होगा, इस एंगल का और x का, तो वही मैंने लिखा x प्लस दिस इक्वल टू y। तो यहां से अगर मैं फाइंड करूं एंगल QTR, so it's equal to y minus x. So this is equation 2, right? I hope these two equations are clear to you. अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वन इक्वेशन कहां पे, यहां पे देखिए, दिस इज वन की राइट साइड देखिए, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, y माइनस एक्स, और 2 की राइट साइड देखिए, 2 की राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, y माइनस एक्स। अगर किन्हीं भी दो इक्वेशन की राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी कैसी होंगी, सेम होंगी। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग दिस वी कैन से दैट QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन प्रूव। हमें प्रूव क्या करना था, QTR को हाफ ऑफ QPR के। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, and this is all about this exercise.